صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے لاسٹ جو نبی ہے نا ان کے بارے میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کیجئے کتاب میں کس نبی کا؟ ادریس کا۔ کتاب میں یعنی قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے۔ ادریس جو عربی زبان کا لفظ نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اس کے میننگز نکالنے کی کوشش کی، میننگز بتائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے قصیر الدرس۔ ادریس جو ہے اس کا مطلب ہے زیادہ پڑھانے والا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قلم سے لکھنا شروع ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ سب سے پہلے قلم کے موجد کون تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کپڑا سینے کے لیے سوئی کا استعمال انہوں نے کیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حساب کتاب کے جو زمانے تھے نا ان کا کام بھی ان کے دور میں شروع ہوا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ انتہائی سچے نبی تھے، بہت بلند و بالا۔ اور سچائی کا مطلب کیا ہوا؟ ورفعناہ، بلند کیا ہم نے اسے مکانا، مقام، علیہ، بلند۔ تو ادریس علیہ السلام کا جو دور ہے نا وہ کب کا دور ہے؟ آپ جانتے ہیں ادریس علیہ السلام کا دور کس نبی سے بھی پہلے کا دور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، اور یا تو ابراہیم سے پہلے کا دور ہے۔ آپ کے ذہن کے مطابق ادریس علیہ السلام کا دور کون کس دور سے پہلے ہے؟ ادریس علیہ السلام کا دور نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کے بعد علیہ السلام کے درمیان، ان دونوں انبیاء کے درمیان کا جو دور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے پردادا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ہی دادا ہیں۔ خیر، نوح علیہ السلام کے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ ادریس کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ادریس اور الیاس ایک ہی نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے اس دور کے اندر بہت سی نئی چیزیں جو ہیں شروع ہوئی، جیسے انہوں نے لوہے کا کام شروع کیا، لوہے کی زیریں بنائی نا، تو تب سے جب سے دنیا بنی اس کے جو ہے نا کچھ دیر کے بعد نوح علیہ السلام کے دادا تھے، اور کچھ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے۔ اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے ان کی سچائی کا بدلہ ان کو پاورز کے ساتھ دیا۔ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن سچائی کے اندر بہت سے سپر پاورز ہوتے ہیں جو انسان کو بلند و بالا مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ انسان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ ورفعناہ مکانا علیہ، یہاں پہ انبیاء کی جو ایک صفت آپ پڑھ رہے ہیں سب میں ایک جیسے صدیق، تو صدیقت کا جو رتبہ ہے یہ بہت اہم ہے
कोई भी इंसान फायदा हो सकता है, ओके। डिपेंड है नीयत पे, डिपेंड है इंसान के एक्शंस पे, डिपेंड है इंसान की डिस्कशंस पे, इंसान के अंदरूनी मामलात पर। अल्लाह ने इतना रुतबान को बुलंद किया कि मेराज की हदीस में कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी मुलाकात पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और कुछ ज़ईफ़ रिवायात और मंदर रिवायात में ये भी कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम भी उठाए गए थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन ये सारी इसराइली रिवायात हैं, इनकी कोई भी दलील कुरान और हदीस से हमें नहीं मिलती। इदरीस अलैहिस्सलाम की भी सिफ्त और उनका मुकाम हम पे वाज़े किया गया, और फिर उनके वक्त में की गई वो तमाम बातें जिनकी वजह जो पहले नहीं थी, इदरीस अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट की। ये भी इनके बुलंद मुकाम होने की निशानी। अल्लाह कहते हैं उलाइकल लदीना, यही है लोग जो अनामा इनाम किया, अल्लाहु अल्लाह ने, अलैहिम उन पर, यही लोग हैं जो इनाम किया अल्लाह ने उन पर। शुरू में आपको ये बताया भी क्या था कि जो हम कहते हैं ना क्या नम अलैहिम, कि अल्लाह ने उन लोगों का रास्ता दिखा जिनको तूने अपना इनाम किया। तो अल्लाह ने इस सूरत के अंदर उन इनाम वाले तमाम लोगों का जिक्र कर दिया कि इनाम वाले कौन कौन है। अल्लाह ने यहाँ पे 10 लोगों का जिक्र किया। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। कौन कौन से हैं? मिनन नबीयीन, नबियों में से, मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, आदम की औलाद में से, औलाद आदम से। तो यहाँ आदम की औलाद से मुराद कौन है? इदरीस अलैहिस्सलाम। और फिर वमिम्मन हमलना मअ नूह, और उनमें से जो जिन्हें सवार किया हमने नूह के साथ। तो यहाँ से नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना शुरू हो जाता है। यानी अल्लाह ने ना शुरू से लास्ट तक के जो ज़माने हैं ना, उन तमाम ज़मानों में बेसिक जो उलुल अज़्म अंबिया पैगम्बर आए, जिन्होंने जो इवोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, और नई नई चीज़ें भी के दौर में लोगों को करने को मिली, उनका जिक्र किया। और फिर साथ ही कहा कि नूह के साथ सवार होने वालों की औलाद, इससे मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र हम पीछे पढ़ के आए। और मिम्मन हमलना मअ नूह, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगम्बर हमें मिलते हैं नुमाया, वो इब्राहीम है। तो फिर यहाँ मुराद पीछे जो जिक्र हुआ नूह की औलाद, नूह के साथ सवार होने वाले, उनमें से फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल, और औलाद में से इब्राहीम और इसराइल की। इसराइल से मुराद यकूब अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे इब्राहीम की औलाद से मुराद इसहाक, यकूब और इस्माइल, और इसराइल की औलाद से मुराद मूसा, हारून, ज़करिया, यहया, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। ये 10 के 10 जो अम्बिया है ना, अल्लाह ने उनका जिक्र फिर दोबारा एक आयत में किया कि जिनको अल्लाह ने इस तरह से भेजा। आदम की औलाद यानी इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो बैठे उनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले। इब्राहीम की औलाद में से कौन से हैं जिनका यहाँ जिक्र हुआ? इसहाक, यकूब, इस्माइल। और फिर इसराइल की औलाद यानी यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से कौन कौन से? हारून, मूसा, जकरिया, ईसा इब्ने मरियम, जिनका जिक्र भी यहाँ पे हुआ। अल्लाह कहते हैं ये तमाम वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अनअमता अलैहिम, जब भी आप अनअमता अलैहिम पढ़ेंगे ना, तो आप कहते हैं अल्लाह हमें इनाम वाले लोगों में शामिल कर ले। तो इनाम वाले लोग कौन हैं? फिर आपने इन तमाम लोगों की क्वालिटीज जहन में लानी। 10 है ना, तो 10 के 10 की एक एक क्वालिटी भी जहन में लाएं। हर दफ़ा एक बंदे की क्वालिटी, यानी अनअमता अलैहिम पढ़ा तो आप देखेंगे, अब आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोचना शुरू होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की क्या क्वालिटीज़ थी कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया। फिर अगली बार जब पढ़ें
अनअमत अलैहिम, तो ईसा अलैहिस्सलाम की, फिर हारून अलैहिस्सलाम की, फिर आप ज़करिया याहया अलैहिस्सलाम। तो हर एक की क्वालिटीज़ को देखें ताकि हमें अनअमत अलैहिम पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हो। और मिम्मन, और उनमें से जिन्हें हदैना हिदायत दी हमने, वज्तबैना और चुन लिया हमने। मिम्मन यहाँ पे तबईज़ के लिए, मिन तबईज़ के लिए, यानी बाज़ को हमने हिदायत दी और बाज़ को हमने चुन लिया। ठीक है, बाज़ को हिदायत दे दी और बाज़ को, मतलब हिदायत के बाद चुनाना। तो सबके सब में थी हिदायत याफ्ता हुए ये इनकी औलाद में से। और हिदायत याफ्ता वही होता है जिसको कुछ शौक होता है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा ना, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, अल्लाह मेरी औलाद इनका क्या बनेगा। अल्लाह ने कहा क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि मेरा वादा ज़ालिमीन को नहीं पहुंचता। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया और फिर अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद का सवाल करने लगे, तो कहा मेरा वादा ज़ालिमीन को नहीं पहुंचता। इसलिए ये जो अम्बिया के बाद जो नबी आए, अच्छे लोग आए, तो लोग ये समझते हैं कि शायद विरासत में सब कुछ चीज़ें मिली। ऐसा नहीं था। कुछ लोग इस काबिल थे, फिर उनको अम्बिया बनाया था, क्योंकि उनके अलावा बाकी भी तो लोग थे ना जो इस काबिल नहीं थे। यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से देख, उनके कितने बेटे थे ना, लेकिन उनमें से एक को नबी बनाया गया। तो जो इस काबिल होता है उसको फिर ये खास चीज़ दी जाती है। ठीक है, वमिम्मन हदैना, और उनमें से जिन्हें हिदायत दी हमने, वज्तबैना और चुन लिया हमने। इज़ा तुतला अलैहिम, अब इनकी क्वालिटीज अल्लाह बताने लगी। इज़ा, जब पढ़ी जाती थी, अलैहिम उन पर, आयात आयात अर्रहमान रहमान की, हर रूह, वो गिर पड़ते थे, सुजदन, सजदे की हालत में, वबुदा करते हुए, रोते हुए। अब इनकी कम, सबकी एक सिर्फ, चले अल्लाह ने कहा कि बंदों को सब कुछ अल्लाह बता दिया, अब इनको खुलासा भी बताया जाए। तमाम अम्बिया जिन पर अल्लाह ने नाम किया, इनकी एक नुमाया सिफ्त क्या थी कि जब भी इन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता, अल्लाह की बातें पढ़ी जाती, वो इतना असर रखती, इतना असर रखती कि इनका ईमान बढ़ जाता, इनके दिल डर जाते और ये सजदे की हालत में रोते हुए गिर पड़ते। और सूरत मरियम के बारे में तो कहा जाता है कि सूरत मरियम, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सूरत मरियम पढ़ी तो सजदा किया और फरमाया ये तो सजदा हुआ मगर रोने वाले कहाँ हैं। यानी वो भी सूरत मरियम पढ़ के आप दीदा हो जाते हैं। सूरत मरियम के अंदर चूँकि किस्से और सिफात कुछ ऐसे हैं, तो कॉमन सिफ्त क्या है कि वो अल्लाह की आयत पर अपने दिल नर्म कर बैठते और अल्लाह की आयत सुनकर हम्बल होना, झुक जाना, आजिज़ी या इख्तियार करना, गिड़गिड़ाना इंसान के ईमान में इजाफे का बायस बनता है। और ये जो एक खास सिफ्त है ना, तो ये अल्लाह अपने खास बंदों के अंदर रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान की दूसरी आयत में भी आप देखते हैं कि सूरह अनफाल आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, कि ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है, वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल, उनके कुलूब डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान बढ़ जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं। यकीन जाने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये कुरान जो है एक ऐसी चीज़ है कि जब दिलों में उतरने लगता है ना, जब ये अमल में आने लगता है, तो कोई भी आयत जब हम पढ़ते हैं हम कहते हैं सुब्हान अल्लाह, अल्लाह को कैसे पता। और भी बहुत से हमारे पर राज मुनकशिफ होते हैं। तो फिर क्या होता है, आंखें भी बहुत बहने लगती हैं। हम नहीं बहाते, आंखें खुद बहती हैं। इंसान का आजिज होने को खुद दिल करता है कि अल्लाह का कलाम कितना बुलंद बाला और मैं किस कदर कमतर और कमज़ोर।
इस तरह सूरह ज़ुमर आयत 23 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह ताला के जिक्र से नर्म हो जाते हैं। ये है अल्लाह ताला की हिदायत, जिसके ज़रिए जिसे चाहता है राह रास्त पे लगा देता है और जिसे चाहता है राह भुला देता है। उसका कोई हाथ नहीं, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबके ईमान को, हम सबकी सोच को अंदर इतनी आजिज़ी पैदा कर दे कि हम भी ऐसे ही बन जाएं। ठीक है, तो जब इंसान को कुरान की अच्छी समझ आने लगती है ना, तो फिर इंसान आजिज़ हो जाता है और इंसान के आंसू बहने लगते हैं। अगर सूरतें पढ़ते हुए जो आपको आपको याद है, तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमें उसकी ट्रांसलेशन की समझ भी नहीं आ रही होती, आंसू बहने लग जाते हैं। तो उसको दिखावा ना समझे, वो तासीर होती है, समझे एक असर है कि जो अल्लाह ने आपको दिया। ठीक है, तो अल्लाह हम सबको ये तासीर अता करे। कुरान पढ़ के कुछ ऐसे भी लोग जो सूरह मरियम पढ़ते हैं, उनकी दाढ़ियाँ तर होने लगती हैं। सूरत मरियम के अंदर जैसे नजाशी था ना, उसके सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत की, सूरह मरियम की, तो कुरान सुनकर बहुत ज़्यादा रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। कहने लगा ये तो वही किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। तो जो लोग अल्लाह की किताब को पहचान लेते हैं ना, उनकी यही हालत होती है। तो अल्लाह हम सबके दिलों को ऐसा करते हैं। ठीक है, कभी कभी ना आयात इतनी सख्त भी नहीं होती, ऐसे आंसू बहने लग जाते हैं। शायद हमारे हालात ऐसे चल रहे होते हैं और फिर हमें सबकी एक मोहब्बत और एक प्यार की ज़रूरत होती है, जो हमें मिलती है कुरान से। कुरान से मिलती है ना, तो फिर हम खुद बहुत अपने आंसू बहाने लगते हैं। तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना, ये कभी भी बंद नहीं करना, बहुत पसंद है। जब इंसान रोना बंद कर देता है, इंसान के आंसू फिर खत्म हो जाते हैं और तो फीक भी खत्म हो जाती है, कि दुनिया में मगन हो जाता है। दुनिया में की रंगीनियों में मगन बंदा आंसू नहीं बहा पाता। यानी आप यूँ समझे कि मौके मिलते हैं, लेकिन रोने वाला मुंह भी नहीं बनता। हाँ जी, तो इसलिए एक तो रीज़न ये कि इंसान की हालात से, तो दूसरा जब अरबी समझ आती है ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप बस दुआ करें कि अल्लाह हमें अरबी ग्रामर को दोबारा सीखने की तौफीक दे। तो आप जब ये देखेंगे ना, डायरेक्ट आपको बातों की समझ आ रही है, आप ज़्यादा आपको अल्लाह के लहजे की समझ आएगी कि अल्लाह ने सख्ती में कहा, प्यार में कहा, मोहब्बत में कहा। इंशाल्लाह। चलिए जी, आपने कोशिश करी है कुछ ऐसा, अगर किसी को कभी ऐसा बयान करना चाहे, कोई कोई आयत कुरान की जिसको पढ़ के मेरा ईमान बढ़ा और खुद सख्त आंसू बह पड़े, सोचिएगा अगर कोई पॉइंट आपके जहन में हुआ तो आप शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से बहुत कुछ आप मज़ीद सीखते हैं एक दूसरे से। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।